will be discussing this year's test paper, fine, GS2 test paper. So have you gone through the test paper? Huh? So what is your understanding? Was it difficult or not very difficult? Not very difficult, but I don't think so. I feel it was not an easy paper. Fine. Most probably, I am pretty sure majority may not have even understood the question and the demand of the question and what was the approach, what exactly UPSC was demanding. Fine. And I believe some unexpected sort of questions, some, not all, and maybe like more questions. Do you think they were information based questions or understanding based question? Understanding based question, not that much information based. Fine. So before we discuss, I'll just introduce Ketan sir. He coordinates the GS test series for the viewers also. You can just briefly tell the program and then I'll start. नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं. So good evening everyone. Hope everybody is fine here. So how many of you have seen the mains paper? All the mains paper? All right. So as you know that when you are preparing for the UPSC exam, the mains plays a very very crucial role. Main से ही आपकी rank decide होने जा रही है. It will ultimately decide whether you are in top 100 और वो bottom में है फिर से आप दे रहे हैं. So and over a period of time, if you are seeing the papers, previous year papers, one thing which you will have observed is that mains is a very tough nut to crack. Why? Because Why? Because UPSC is changing the nature of questions which are being asked. As you have said, or ma'am has said that understanding based questions are being asked. Sometimes, once you start preparing, then the most common thing which comes to your mind is Sara current affairs hai. You are only seeing GS2 mein, you will only see the current affairs reverse trend hai. Yeah. If you see the GS3 paper, whatever is there mentioned in the syllabus, वहाँ से direct पूछा हुआ है. So that is why we are launching this test series. Basically, आपको एक mentor guided test series रहेगा. आपके syllabus को cover करने की कोशिश की गई है. So there will be 24 GS test and 4 essay test. बहुत से लोग होंगे, if I ask that how many of you have written any essay till date? So I guess all right. So essay एक ऐसा subject है in which marks fluctuate depending upon how much effort have you given. All right. कई बार आपका 90s में रह जाएगा, कई बार आपका 150s में हो जाएगा. So to get good marks, you have to have at least enough essay writing practice. That is what we are providing here. So a total of 28 tests is there. It's a year-long test series program. It starts on 6th of November. Every Sunday there will be test, and it goes on somewhere around Feb 10 या Feb 20 somewhere around वहाँ तक जाता है. Then you get a break. From 6th November to Feb, that duration, your whole GS paper will be covered. All right. Whole GS 1, 2, 3, 4 paper would be covered, and then remaining after prelims you have 8 full length test paper. 8 full length test paper. All right. So this is one of the very crucial time to prepare for the mains is समय. All right. It is very very important that you focus on the mains at this moment and try to practice it through the answer writing. So
what we are providing, what you will be getting once you enrolled in this test series, first would be a detailed schedule, कब टेस्ट है, क्या syllabus है, all those things will be there. Second would be the quality of question paper which you will be seeing, that will be at par with the UPSC or a little notch higher also. All right, quality question, see, not only practicing questions but practicing quality questions, that is what very important. All right, so you will be getting a good quality question paper. Then model answers. All right, model answers, or you can say that high impact answers. What is actually required in your answers? Facts, figures, value addition, let us say in polity some Supreme Court judgment, all those things are there, some case studies which are there, so that you can refer those answers for your revision type of material. All right, that will be there. Then once you write an answer, once you submit your copy, somewhere around within 1 week or 10 days, within 10 days you will be getting your evaluated copies with detailed feedback. What mistakes have you done? What needs to be done? All those things will be written in your evaluated copy. All right. Once you get your copy, you can go for personalized mentorship, one-on-one mentorship. It can be done offline also. It can be done through, online also. All those things are there. So mentorship is also very important. Why? Because there are, different things. You will get n number of points regarding the mains answer writing. And some of you might have written mains, I don't know, because sometimes marks get plateaued. All right, you don't know कि I am doing everything which is possible, even then I am not able to score, let us say, more than 80 or more than 90. Then at least you should talk to someone or mentor so that you can increase your marks. So that is also there. And at the end, the test discussions by our expert faculty would also be there, and it will be done in online mode. You will be having the discussion video at your portal. So all those things are provided in this test series program, which is starting on 6th of November. It is starting on 6th of November. All right. So any questions anybody is having related to this? All right. Okay. Yeah. टेस्ट पेपर है इसमें? Yeah. Suppose this was the first question. The most significant achievement of the modern law in India is constitutionalizing of environmental problems by Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case laws. मतलब जो important cases थे, तो ये तो एक तो टेस्ट कर रहा है कि you have done proper preparation or not, ये थोड़ा facts based है, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आया, हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन, इसका आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक वाज द एक्सपेक्टेशन? नहीं, मतलब आर्टिकल्स क्या क्या है, मतलब क्या इसका बेसिक मटेरियल होना चाहिए था. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट अस सी. इसमें जरा वो कह दो, क्या क्या लग रहा है क्वेश्चन, कैसे तुम लोग डीकंस्ट्रक्ट कैसे करते हो क्वेश्चन? क्वेश्चन का थीम क्या है? रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल, लेकिन इन वर्ड्स, वो प्लेन ये वाला ना, इन वर्ड्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है? इसमें ऐसा कोई वर्ड है जो लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये हटेगा. आई एम राइटिंग हियर. मतलब ऐसे लग रहा है कि अगर हम केस बता दें, तुम्हें फैक्ट्स बता दें, तो ये आंसर कर लोगे. द क्वेश्चन इज, सबसे पहले ये हटाओ, जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन के की वर्ड्स को पहले हाईलाइट करना होगा
कि इसको इस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन में बड़ा एम्फेसिस करके कहा जा रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ in constitutionalizing of is constitutionalizing of environmental problems by Supreme Court with the relevant law। तो क्या क्या चीजें एसेंशियली हमको लिखनी थी? एक तो मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, इसको हम कैसे, ठीक है, तो कैसे, व्हाट विल बी द थॉट प्रोसेस कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट कैसे है? इन कॉन्स्ट, और इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, मान लो अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख सकते हो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, तो इसका स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्या बताना चाहिए था? व्हाट शुड हैव बीन द फर्स्ट थिंग? चलो अगर हम लिखेंगे तो पहली लाइन क्या होनी चाहिए थी? इन द मॉडर्न लॉ, ठीक है, मतलब कन्वेंशनल लॉ में, या मॉडर्न लॉ नहीं था तो ट्रेडिशनल लॉ था, तो ट्रेडिशनल लॉ में इन्वायरमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई थी। अगर मॉडर्न लॉ नहीं है अपना तो ट्रेडिशनल लॉ है या जो भी है नॉन मॉडर्न लॉ है, तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? लॉ मॉडर्न छोड़ दो, मॉडर्न लॉ कब से आ रहा है अपने पास? 1947 से आ रहा है या ब्रिटिश टाइम से आ रहा है? ब्रिटिश टाइम से ही आ रहा है मॉडर्न लॉ। तो उससे पहले का लॉ, उसमें एनवायरनमेंट पे कुछ है? नहीं है। व्हाट इज द टर्म ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? धर्म, ठीक है, धर्म इज तो लॉ, इंडियन वर्ड फॉर मनुस्मृति किसका टेक्स्ट है? धर्म। तो धर्म मतलब लॉ, ठीक है। मनुस्मृति क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉ है, ठीक है। लॉ इज बेस्ड ऑन विच टेक्स्ट्स? ऑब्वियसली वैदिक टेक्स्ट्स। डू द वैदिक text show some sensibility towards protection of environment? ठीक है, तो is India a country where environment has always been, at least if not in practice, तो environment, it is nothing new. Today we are just using constitutionalization as a word, but it has been there also. मतलब if you compare with other countries, not just modern tradition of India, even the earlier tradition also had that sensitivity. ठीक है, हम इसके ऊपर आएंगे। मतलब पहले सोचो कि हम इसको और कैसे कैसे सोच सकते हैं, लेकिन पहला स्ट्रक्चर ये है, सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अगर बोला जा रहा है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? हमको ये एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंज कौन सा है। ये इतना सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है या एरिया है, यानी कि वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस हाउ चैलेंजिंग और व्हाई एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैव टू बी प्रायोरिटाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो इशू होता है, तो उस इशू का पहले इंपॉर्टेंस समझे, स्पेशली जब इसमें ऐसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं।
तो फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना था, मतलब जस्ट स्ट्रक्चर लिखो कि यू शुड टेल द इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट प्रॉब्लम कितना चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे डिफाइन, इस बात को हाउ विल यू डिफाइन। नॉर्मली इन आंसर्स स्टूडेंट्स डू नॉट हैव फ्लो, दे डोंट थिंक, दे डोंट प्लान, दे डोंट, मतलब ऑर्गेनाइज करके नहीं लिखते हो, इसलिए कहीं पहुंचता नहीं है आंसर। तो आप व्हाई डू यू थिंक द बिगेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज विच ह्यूमैनिटी इज फेसिंग इज एनवायरमेंट? इसके बारे में आप क्या 2-3 आइडियाज दे सकते हैं? तुम्हें लगता है एनवायरमेंट चैलेंज है? क्यों है? क्या? गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब environment is one such issue which is linked to many other issues. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एनवायरमेंट मतलब हेल्थ है। I don't think that there is any single issue which can be seen in exclusion of environment which we face, right from our physical health to the mental health, from our food security to energy security. तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन करो कि यू कैन कंसेप्चुलाइज द स्फीयर और जो डोमेन है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो सेकंड में हमको क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, हमें अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहिए था कि हाउ सीरियसली और आर वी अंडरस्टैंडिंग द डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट है significant achievement of modern law in a constitutionalization of environmental problems। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि in modern times environment, since when we have started giving importance to environment, और क्वेश्चन चूंकि इंडिया स्पेसिफिक है तो बेसिकली environmental legislations, they have been started as a part of the global processes like Stockholm Conference, and after that what we see that there has been no explicit mention of the environment related rights, responsibilities, but 42nd Amendment Act has introduced the new directive principle. It has introduced a new fundamental duty. तो एक historical approach पहले ले हमेशा डेवलप करो जिससे फ्लो रहे। ठीक है, तो सेकेंड इसमें क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, सिंस व्हेन environment has started becoming an issue in modern times। तो बेसिकली फ्रॉम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रिजल्टिंग इनटू इन्वायरमेंट रिलेटेड पहला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अमेंडमेंट्स, एंड सेकेंड स्टैट्यूटरी मतलब जो स्टैट्यूटरी एक्शंस प्लस पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, जैसे एनवायरमेंटल पॉलिसी आ गई, ये चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, नाउ अब ये तो हमने किया, अब हमको बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग के ऊपर बड़ा एम्फेसिस है, इसका मतलब है कि वी शुड शो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल इशू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या शो करना है, इसको लिखो पॉइंट में, अंडरस्टैंडिंग शो करनी है ऑफ इन्वायरमेंटल इशू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये हम कैसे शो कर सकते हैं? सीधे आर्टिकल से या कुछ और भी कर सकते हैं? किसी चीज का बिग पिक्चर देख सकते हैं? अल्टीमेटली हाउ डू यू कंसेप्चुलाइज द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बॉटम में आप क्या चीज कंसेप्चुलाइज करते हो? सोसाइटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, तो लाइफ विथ डिग्निटी, ठीक है, तो डिग्निटी है ना, तो we can always say that these new additions are a part of our constitutional vision. All debate का एक हमको एक थीम सोचना पड़ेगा, वो है to live with dignity, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन एक्सप्लेन करो दैट किस फ्रेमवर्क में हम इन्वायरमेंटल इशू को डिस्कस करेंगे. तो इवन विदाउट दीज अमेंडमेंट्स द preamble's vision of giving a life of dignity, is it related to environment? Is preamble's vision of justice, social, economic and political related to it? Of course environmental issue. तो वो पहले ये दिखाना है कि हमें वर्कबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट है टू कॉन्टेक्स्ट में, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है. बट अगेन you have to understand that why this problem has been recognized and what steps have been taken. तो अब ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करके सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस. व्हाई? ऐसा क्यों? बिकॉज व्हेन 70s इज कमिंग, then obviously global environmental norms are emerging, fine, and जो global environmental norms हैं that focus on the relationship between environment and development, ठीक है. और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके लिए डेवलपमेंट इज अ बिगर प्रायोरिटी. तो हमारे लिए ऑप्शंस फॉर डेवलपमेंट आर वेरी लिमिटेड. वी हैव टू गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट टू वी मे नॉट हैव कैपेसिटी टू डू सो. तो उसमें थोड़ा सा डिलेमा दिखाना चाहिए ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या उसमें क्या चैलेंज है, ठीक है. तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, व्हाई दिस रोल इज इंपॉर्टेंट? तो 70s का टाइम, ठीक है. 70s में दो चीजें हैं. पॉइंट नंबर 1, द डिबेट ऑन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज, एंड पॉइंट नंबर 2, द राइजिंग कॉन्शियसनेस about environment, or a beginning of India's environmental movement. अब environmentalism and development in third world countries will always linked to the poverty, it will link to poverty alleviation and these type of things. तो थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग दिखानी है हमें इशू की. अब नेक्स्ट है, फोकस चुकी है सुप्रीम कोर्ट पर. व्हेन यू से समथिंग न्यू, स्टार्ट विद अ न्यू पैराग्राफ. तो क्या हमको दिखाना है? हमको अब नेक्स्ट दिखाना पड़ेगा हाउ डज सुप्रीम कोर्ट फिगर्स इनटू दिस एम. यस, यू हैड अ क्वेश्चन. हमारा मतलब ये सबके बैकड्रॉप में डिबेट क्या है? तो डिबेट है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी and our priority of poverty alleviation, ठीक है. and whenever you talk about poverty alleviation, you talk about the rights of weaker sections, ठीक है. तो try to show a holistic understanding of an issue in your first paragraph as briefly as possible. Mostly try to link with constitutional visions. Now you should know how you fit सुप्रीम कोर्ट into it. सुप्रीम कोर्ट कैसे फिट होता है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब हम लिखेंगे तो किन किन चीजों में सेग्रीगेट करके अब हमको लिखना होगा? क्या लिखोगे?
most important achievement of modern law in context of the environmental problem by Supreme Court. तो हमको नेक्स्ट क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट का रोल. ठीक है, लिखो फिर ऐसे लिखो, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या कंसेप्चुलाइज कर रहे हो. व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन सिस्टम यू हैव, विच टाइप ऑफ कोर्ट वी हैव. अरे एनजीटी की बात ही नहीं है ना यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की बात है. सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? पार्डन? व्हाट? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द राइट्स, और पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस. ठीक है, वो तो आप उसके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं. हमेशा क्या है, पहले विजन दिखाना चाहिए. ठीक है, अप्रोच पहले दिखाना चाहिए, थीम, और फिर स्पेसिफिक बातें करनी चाहिए. तो अब ये शो करेगा कि डू यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डिजाइन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट और नॉट. हाउ डज सुप्रीम कोर्ट लुक्स एट the constitution, how does constitution looks at supreme court? इंटरप्रेटर, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं. आप लोग बड़े आइडिया, फिलॉसफी, सबसे पहले किसी भी चीज में फिलॉसफी के पीछे जाओ. प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट वाइट, बहुत क्या कह सकते हैं, ओछी चीजें. बड़ी सोच रखो, बड़ी. ठीक है, तो अभी शायद किया नहीं होगा अगर आपने जीएसएस में, मतलब विजन क्या है. तो विजन, नो, अंडरस्टैंड दैट इवन, यस, सब बेकार चीजें हैं, सब एसएससी लेवल की चीजें. ठीक है, नॉर्मली एक चीज हमेशा इंडियन सेक्शन में फिट होगी और आगे जाकर के इस तरीके की चीजें आएंगी. इफ यू सी द चेंजिंग ट्रेंड, हमेशा अपना जब भी पॉलिटी करो तो जस्ट डोंट लिमिट लक्ष्मीकांत. ठीक है, तो पॉलिटी के लिए एक एक्सपेक्टेड रहता है कि आपने कुछ स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए. इसमें एक किताब तो अब पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हमेशा ट्राई टू कीप ग्रैनविल ऑस्टिन्स आइडिया इन माइंड. ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन के आइडिया को माइंड में रखो whenever you discuss any institution. ठीक है, but what is his idea? कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन ही नहीं, लेकिन हर आइडिया हर जगह थोड़ी फिट होता है. उसका एक मेन आइडिया ये है दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस political revolution was over and social revolution. And which type of revolution? India's revolution is peaceful, constitutional, social revolution. We have not gone for the violent method of change. And if you talk about, पहले सुन लो, मतलब विजन है पंडित नेहरू का, that judiciary will not be the passive participant in India's constitutional or social revolution. Judiciary will play an active role. हमने judiciary को already transformative role दिया हुआ है. We have given that transformative role to judiciary. ठीक है, तो ऐसे किसी चीज के एकदम कितने मुझे फैक्ट्स याद है उस पर मत जाओ. उसकी फिलॉसफी ऑलवेज विल गिव एन एडेड अट्रैक्शन. हाँ, मतलब ऐसे समझो ना, 100 बात की एक बात, पूरा सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, बट क्या एसेंस निकल के आया? दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेक असेंबली हैज इनविसाज्ड द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. ठीक है, तो देयर आर मेनी एक्सेप्शनल थिंग्स वी हैव डन. ये भी एक बहुत एक्सेप्शनल है, दैट सुप्रीम कोर्ट is being seen as an active participant in India's social revolution. ठीक है, ये social revolution है.
और सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और ये नेहरू का स्टेटमेंट है। अब इसी से, जैसे तुम लोग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिख देते हो, ये है वो है, लेकिन कोई कंटेक्स्ट नहीं होता बात करने का, ठीक है। ऐसे सेग्रीगेटेड पॉइंट्स दे दिए, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको एक कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज इट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, इट हैज बीन गिवन वास्ट पावर्स, ठीक है, तो इसलिए उसको वास्ट पावर्स दिए। अब वास्ट पावर्स कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, कैसी हैं, what vast power and what is the nature of those vast power, there is a difference. When you will write nature of that vast power, it will show your analytical ability. When you simply write guardian of the constitution, उसको एक context में लिखना है, ठीक है। तो as a vast power, what powers do you think it has, which type of power, ठीक है। Now tell me this type of an action of Supreme Court constitutionalizing the rights related to environment, for which word you will use, ये जुडिशरी के एक्टिविज्म, ठीक है। ये तो एक्टिविस्ट जुडिशरी है, और एक्टिविस्ट जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वेसाज्ड है, ठीक है। तो अब एनालिटिकल स्किल्स तुम्हारी आनी चाहिए कि विच, कभी भी जैसे यू शुड शो what are the parameters you are analyzing the things, ठीक है। तो if we take such a responsibility of the Supreme Court in Indian constitutional scheme, और हमेशा लैंग्वेज पे कमांड, कुछ बातों को करने का तरीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, व्हाट यू सी, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन substantive powers as well as procedural powers, ठीक है। substantive powers भी हैं और procedural powers भी हैं, means it has also been given power to get the things done, ठीक है। and it's your art, like how much things you can write. For example, judiciary does not come in the definition of state under Article 12, but it does come under the definition of state in Article 37, ठीक है। means if executive and legislature is not doing something, it is in the capacity of judiciary to take an action, ठीक है। तो उसको एनालिटिकली एनालाइज करना चाहिए, और वर्ड्स मतलब एनालिसिस करते समय जहां जहां फैक्ट्स लग रहे हैं वो उसका आप रेफरेंस देते जाओ, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते थे हम, तो ये आई वुड हैव स्टार्टेड, बिकॉज ये सारा डीपीएसपी सबसे लिंक्ड है, फंडामेंटल राइट्स, तो आई वुड हैव स्टार्टेड दैट सुप्रीम कोर्ट एज अ सब्सटेंटिव पावर इज सीन एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 37, ठीक है। and the complementary article is Article 141, which says that the law declared by Supreme Court shall be treated as the law by subordinate courts, means till Parliament doesn't come up with the law, Supreme Court made law will prevail, ठीक है। then try to show your knowledge that under article, and then if you talk about procedural powers, fine. So procedural powers, for example, under article 32 it has power to issue the writs, ठीक है। then under article 129 Supreme Court as a court of record, means if it is saying something and government is not responding, it has power to punish for its contempt, power to do, ऐसे you can
discuss. Okay, now the journey of Supreme Court constitutionalizing the environmental rights. So what we see, Supreme Court constitutionalizing the environmental rights, it is a reflection of judicial activism. ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करने की कोशिश करो नेक्स्ट पार्ट में, जैसे लिखो अपने पास क्या डिफाइन हम कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग ऑफ इन्वायरमेंटल राइट्स। तो इसके लिए क्या चीज है, ये एक तरीके का जुडिशियल एक्टिविज्म है। इज जुडिशियल एक्टिविज्म अ बैड वर्ड? नो, नॉट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। बट जुडिशियल एक्टिविज्म कम्स अप व्हेन even you can say that these rights were inscribed, or this thing has been inscribed, no effective action has been taken, hence Supreme Court has intervened to give substance. Even Parliament has brought the law on environment protection law or pollution control law, but India is often known as what? A soft state. You don't see the actual implementation of the laws and making difference in the life of the people. तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस से और कंफर्ट से आंसर लिखने हैं और समझ के लिखने हैं कि आप समझ के लिख रहे हो, आपको बस जो फैक्ट्स आते हैं वो पेपर पे नहीं लिख रहे हो, जो लिख रहे हो वो समझ भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, so what we see, the era of beginning of judiciary's activism in the field of environment, ठीक है, towards strengthening the environmental rights. Okay, now what is the way, what has been the prime mechanism by which Supreme Court did this? सब जुडिशियल एक्टिविज्म का बेसिस तो है ही है। अब नेक्स्ट हमको क्या लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए कि क्या तरीका, व्हाट इनोवेटिव थिंग सुप्रीम कोर्ट डिड सो दैट इट कैन गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। तरीका क्या था, क्या तरीका था? अरे PIL, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन क्या है, किस मैकेनिज्म का है? PIL का। ठीक है, गिविंग रिकॉग्निशन टू PIL, लिबरलाइजिंग द आइडिया ऑफ लोकस स्टैंडी, ठीक है, वर्किंग इन कॉन्सर्ट विद सिविल सोसाइटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज ट्राइड टू गिव मीनिंग टू द constitutional vision and the subsequent changes. अभी ऐसे पता नहीं होगा, लेकिन जैसे PIL या जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ते हैं तो उस समय जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस भगवती, ये दो लोग काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कभी इनका कुछ याद हो, रेफरेंस है, तो इन्होंने ये एम्फेसाइज किया है कि इवन व्हेन देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, put certain responsibilities on the state, judiciary will not take it lightly. Judiciary recognizes even directive principles and these rights. ठीक है, तो अगर पता है, इन जनरल नहीं भी पता हो सकता है, बट कृष्णा अय्यर इनका हम रेफरेंस देके उस चीज को और सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको डायरेक्टली आना पड़ेगा केस लॉस पर। ठीक है, या क्या क्या चीजें ली हैं। तो अब इसमें नॉर्मली, डू यू नो द केस लॉज? एक केस तो काफी फेमस है, MC मेहता केस। ठीक है, CNG से रिलेटेड केस है, आपको पूरा केस नहीं भी याद है तो, लेकिन इश्यूज तो हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है। अभी ट्यूटिकोरिन में
रिगार्डिंग दैट वेदांतास प्लान कॉपर स्टरलाइट प्लान है, ठीक है। तो अब ये आपकी स्मार्टनेस है, आपको एग्जैक्टली केसेस पता है तो यू राइट, उसके रेफरेंसेस पता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिपरेशन इज डिफरेंट एंड एग्जाम में, तो हाउ विल यू मैनेज द सिचुएशन, ठीक है। तो कुछ तो वेल नोन केसेस रहते ही हैं, एमसी मेहता केस है, कॉपर स्टरलाइट रिलेटेड केस है, केस रिलेटेड टू नियमगिरी हिल्स है, स्ट्रेंथनिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स है, ठीक है। तो ये एक जेनरिक, वैसे भी ऑलवेज यू शुड बी नोइंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स रोल इन इन्वायरमेंटल, एटलीस्ट इन फॉर जनरल स्टडीज, ठीक है। तो गिव रेफरेंस टू इम्पोर्टेंट केसेस। नहीं तो अब यही है ना कि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें स्पेसिफिक केस नहीं पता है। अब एमसी मेहता बनाम ये केस है, लेकिन तुम्हें ये पता होगा कि सीएनजी रिलेटेड केस है, तो उस हाउ दैट इज हाउ आर यू हैंडलिंग द सिचुएशन, सिचुएशन हैंडलिंग करो ना, इतना अनअवेयर नहीं होगे जब तुम प्रिपरेशन करोगे, उस समय जो याद है तो वो करो, ठीक है। तो अब इस मिनिमम 2-3 तो देने चाहिए, लेकिन आपके पास आइडियल सिचुएशन नहीं रहेगी। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें उस आंसर में उस एरिया पर वर्क करना है जो तुम्हारा स्ट्रांग है। इट इज योर आर्ट दैट वेयर यू वांट टू टेक द थॉट प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनर। सबको पता है कि भाई इतने केसेस थोड़ी किसी को याद होंगे। यस, इससे नहीं, तुम्हारे लिए कोई चीज बड़ी, दूसरे के लिए छोटी, लेकिन मेन चीज ये है कि कुछ केसेस सभी को पता होते हैं, जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी है, दैट इन्वायर्ड, जैसे एमसी मेहता वैता, ये तो नॉर्मल केसेस है ना, तो आप उनको दे दो केसेस, ठीक है। तो दीज केसेस, इन फैक्ट when you take an environment as an issue, it is a very broad issue related to the sustainable development. Environmental concerns are always related to the concerns of the vulnerable sections. Fine. So even there are, if I say right to education, can you link with environment? Yes or not? Even right to information, can you link? Right to food you can link, ठीक है। तो मान लो वो नहीं राइट्स पता है, तो राइट टू लाइवलीहुड भी तो उसका हिस्सा है कि नहीं एनवायरनमेंट का। तो ये तो तुम कितना तुमने पढ़ा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो पढ़ा उसको स्मार्टली कितना यूज कर लिया। वो तो कई तरीके हैं टू सेल थ्रू दिस डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है, उससे पहले भी तो आप लिख सकते हो द एनवायरनमेंट इज अ बिगर इशू। फाइन, एंड लेट अस नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस व्हिच आर ओनली स्पेसिफिक टू पोल्यूशन and climate or these things. There are plethora of cases ranging from right to information to right to livelihood, which directly indirectly comes under this gambit. ठीक है, वैसे मैं बता दूंगी केस अभी, लेकिन वो नहीं भी लिखा तो ज्यादा अच्छा है, समझ लिखनी है। वे फॉरवर्ड कहाँ, अभी तो एनालिसिस का प्रॉब्लम है, अभी इतना लिखने से कैसे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग बाय द इन द कॉन्स्ट। अब इसमें एनालिसिस भी तो लिखोगे, तो क्या एनालिसिस लिखोगे, इसकी क्या एनालिसिस हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट इज टेकिंग अप दिस इश्यूज, is it creating a pressure on the legislature and executive to take it more seriously? तो इस एक्शंस का आपने कैसे समझ रहे हैं, एक आंसर के लिखने में comfort is very important. You should show that you are very comfortable with the idea.
ठीक है, तो कंफर्ट से लिखो तो तुम्हें समझ में उसके एंगल्स डिराइव करो. एंगल क्या हो सकते हैं? दैट कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग इट एंड recognizing especially under article 21 is obviously going to put pressure on the legislature as well as on the executive, so that there is a better realization of such rights. Still, whenever such things are concerned, do you think that it is enough for Supreme Court? तुम्हारी अपनी approach लाओ. Do you think it is enough for Supreme Court to achieve the aims by giving the judgments? Then what is required? हाँ? Executive legislature, उसके लिए क्या चाहिए? अरे बिना पब्लिक एक्शन एनीथिंग पॉसिबल. तो इसमें तुमको दिखाना होगा still this constitutionalism will result into only partial achievement so long there is not a strong public action. ठीक है, तो without एक सेंस जैसे without responsible citizenship can we have good governance? ठीक है, तो you will still talk about it, but hopefully many of you may also be knowing the person who is talking about a strong public action in present times. कौन? अमर्त्य सेन. ठीक है, तो आप अमर्त्य सेन के रेफरेंस से लिखिए. जनरल स्टडीज में भी लिख सकते हैं that a strong public action is a key to governance. ठीक है, and it has to work, it has to be a team effort. Still we are much short of the goals. Still we are much short of the realization of those goals. ठीक है, and day before yesterday itself I was reading some environment performance index. ठीक है, उसमें 180 countries हैं where India is the last. ठीक है, similarly if you have been reading and if you know which public intellectuals are writing about environment, fine. So one prominent person you must be aware, Ramchandra Guha. ठीक है, तो what he says that India is a basket case of environmental tragedies. ठीक है, every type of environmental tragedies we have, it means is still lot to be covered. क्या होगा आपका way forward? तो एक just a holistic piece of your understanding, your approach, your way of dealing with that topic is important. ठीक है, you had some question. तो जब ऐसे हाँ या something you should write only what comes in the flow. No unnecessary demonstration of your knowledge, but it has to be very comfortable in reading. और वो तब होगा जब पूरा डिसाइड कर लो. To write a answer, good answer, you should first think about the conclusion. जब हम conclusion, हमें destination पता है तो हमें रास्ता भी पता रहता है. तो destination मैंने क्या सोचा था कि it is definitely, ये सब तो है ही है, civil society ये सब, it is definitely one of the most significant achievement considering the, इसको फिर से emphasize करना होगा, considering environmental issue touch spectrum of the quality of life related issues, but it is the significant achievement, yet we come from the society or a culture where even India's ancient law, that is dharma, ठीक है, contains the idea of protection of environment, whether we talk about Rig Ved or we talk about
मनुस्मृति, ठीक है। हाँ, मेन चीज है कि आपको ऐसे होना चाहिए कि जो कोई ऐसे लगे 50 आंसर आ रहे हैं, 50 आंसर आ रहे हैं, आर्टिकल दिस दिस दिस, ये इसके बाद ये, अब उसके बाद अगर कुछ अचानक से अच्छा आ रहा है, कोई भी बहुत फैक्चुअली नहीं पढ़ना चाहेगा, ठीक है। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप लिखोगे, उसमें कुछ थीम होगा, कुछ आइडियाज होंगे, कुछ थिंकिंग होगी। जस्ट डंपिंग ऑफ व्हाट यू हैव मग्ड अप, वो नहीं है। अगर ऐसे सोचने की प्रोसेस यू विल स्टार्ट, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बिकम इजियर, ठीक है। तो नाउ let us see the second question. To what not this thing, ठीक है। the question is, right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to Indian citizens, but these rights are not absolute. क्वेश्चन का एम्फेसिस पहले सर्च करो, 2-3 बार रीड अ क्वेश्चन, ठीक है। तो एम्फेसिस किसके ऊपर है? राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ज्यादा डिस्कशन हमको किस पे करना है? हाँ, रेस्ट्रिक्शंस पे करना है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे करना है या किसी और रेस्ट्रिक्शन पे? मूवमेंट, सॉरी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के रेस्ट्रिक्शंस पे करना है। इसको और देखो और सोचो इस क्वेश्चन का, और क्या बड़ी, हमेशा किसी भी चीज से बड़ी बात निकाल के लाओ। कोविड छोड़ दो, वो छोटी बात, पहले बड़ी बातें सोचना चालू करो। हर चीज में एक मुद्दा होता है। आर्टिकल पार्टिकल छोड़ दो ना, आर्टिकल छोड़ दो, ठीक है। थोड़ी सी ओरिजिनल थिंकिंग रखो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा मुद्दा उठाया क्या जा रहा है? पार्डन? हाँ, हमेशा पहले जेनेरिक सेंस में बात करनी चाहिए, ठीक है। तो जेनेरिक मुद्दा क्या है यहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, या फॉर दैट मैटर राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, ठीक है। तो राइट्स हमेशा विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो डोंट यू थिंक द क्वेश्चन इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट हैज यूपीएससी एवर प्रेस्क्राइब Lakshmikant? Why your vision is so much limited to that? जल्दी जल्दी आर्टिकल लिख दें, ठीक है, निकल लें, ठीक है। यूपीएससी ने तो कभी ऐसे कहा नहीं है, ठीक है। तो पहला तो अपना विजन, पहले मुद्दा समझो, राइट्स का मुद्दा है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में जब तुम लोग कहते हो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर एंड मल्टी डायमेंशनल आंसर, उसका मतलब क्या होता है? डायमेंशंस। कौन से डायमेंशंस होते हैं? सबसे पहला डायमेंशन क्या है? फिलोसफिकल, ठीक है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो फिलॉसफी ही लिखी गई है, फिलॉसफी। तो आप पहले फिलॉसफी ऑफ राइट्स की बात कीजिए, ठीक है। राइट समथिंग अबाउट राइट्स दैट हेल्प्स, दैट कैन एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स, ठीक है। तो इस आंसर में हम पहले क्या लिखते? सबसे पहले राइट के बारे में लिखते, ठीक है। और राइट एंड रीजनेबिलिटी के बारे में लिखते जेनेरिक सेंस में। फिर हम लिखते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो जनरल से पर्टिकुलर से मोर पर्टिकुलर पे आया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम पहले राइट्स रिलेटेड डिबेट रखते हैं। अब बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन रहता है
कि भाई पॉलिटिकल साइंस में आंसर हुआ तो ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, जीएस में तो ये लिख ही नहीं सकते, जीएस में हमें बड़ा सब स्टैंडर्ड आंसर लिखना होता है, ऐसा ऐसी सोच है ना तुम लोगों की। ठीक है, मतलब जो जीएस वाला एग्जामिनर होगा तुम्हारे हिसाब से वो बड़ा सब स्टैंडर्ड आंसर एग्जामिनर होगा, और वही एग्जामिनर एकदम बड़ा महान हो जाएगा जैसे ऑप्शनल, ऐसा कुछ है। और तुम्हें पता है वी आर स्टडीइंग दीज थिंकर्स बट दे आर नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, व्हेनेवर सुप्रीम कोर्ट गिव्स जजमेंट्स, ये सारे लोग होते हैं, तो स्पेशली जब आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत सारे लोग पता हैं, तो उसमें डरो नहीं, पीपल गेट मोर मार्क्स व्हेन दे राइट ऑल दोस थिंग्स। तो इस डिबेट को किस थिंकर के डिबेट से हम जेएस मिल के हार्म प्रिंसिपल से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी बाद में एक और थिंकर वी विल डू, और अभी जब भी राइट्स के डिस्कशंस होते हैं इंडिया से लेके अमेरिका तक जुडिशरी में, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर आता है रोनाल्ड डॉर्किन, और वो पॉल साइंस का थिंकर है नहीं, वैसे वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही थिंकर है। ठीक है, और डॉर्किन की बुक है टेकिंग राइट्स सीरियसली। ठीक है, अब टेकिंग राइट्स सीरियसली में उसका एक फेमस स्टेटमेंट है, राइट्स आर द ट्रम्प्स, मीन्स राइट शुड प्रिवेल ओवर एनी अदर थिंग। ठीक है, तो आइडिया ऑफ राइट्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया, and he suggests that rights have to be taken seriously. और why do we have the rights? हमें rights मिले क्यों हैं? What is the objective to have a rights? तो हाँ, तो rights के बारे में how much in depth you can think, और सबको पता है लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं। ठीक है, तो rights are needed, don't you think, to have a rule of law? Rule of law. Why do you want a rule of law? फिर वो तो दूसरे सेंटेंस में आपने बता दिया। Ultimately, rule of law चाहिए so that government does not act in an arbitrary manner. Why do you want government not to act in an arbitrary manner? Government से expectation क्या है? Normally एक generic expectation है good governance। ठीक है, अब ये पहले सोचो ना कि इस इशू पे सोचने कैसे सोचे, क्या क्या चीजों से, क्या क्या एंगल से हम सोचें। शुरू में सोचोगे फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसी भी चीज के आइडिया क्या, मतलब उसके बॉटम में पहुंचना होता है। बड़ा क्वेश्चन क्या है? गुड गवर्नेंस। ठीक है, और ये रियलाइज किया गया कि फॉर गुड गवर्नेंस it is important, even if you talk about second ARC, it mentions about citizen centric governance is essential, and citizens can, आप theory को उठाओ उसकी कि there cannot be any good governance without an active role played by the citizens, and citizens be able to play an active role needs the protections. These protections are called rights, and these rights are given a very sanctified position. Even if we talk about Indian Constitution, there is not only fundamental rights, there is a right to enforcement of fundamental rights is itself a fundamental right. तो ये जो क्वेश्चन किसी ने लाया है, उस इशू की सीरियसनेस को अगर आपने कैच किया, इफ यू कैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्सन हु इज राइटिंग द आंसर, और आप उसके सिंक में हो कि भाई किसी ने बड़ी मेहनत करके सोचा होगा ना इस फील्ड में पूछते हैं, तो कितना ज्यादा आप उसके साथ सिंक में आ जा रहे हो। तो पहले बड़ा सोच लो, वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की बात है, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ठीक है,
तो these rights are not, फिर आ जाओ theory पर कि still it's all about the establishing the equilibrium या balancing between the rights of an individual and the public order, the concerns of public order, morality. In this context, some scholars, they have tried to give how are they are going to address this paradox या conflict. For example, J.S. Mill's harm principle. And you can directly link that the harm principle of J.S. Mill finds its reflections in the form of the reasonable restrictions that we see in every freedom that is given under Article 19. ठीक है, तो what is the purpose? Article 19's purpose itself is to establish the rule of law and to restrict the arbitrary powers of the state. क्वेश्चन को उठाना है, लेकिन क्वेश्चन को डायरेक्शन देना आपके पास है कि आप उसको किस ढंग से उस चीज के एंगल को सोच सकते हो, उसको डेप्थ में जा सकते हो. ठीक है, और रूल क्या होता है? लुक व्हाट इज द मेन थीम, जिस थीम को लेकर भी ये चीज बनी होगी. तो थीम नॉर्मली क्या रहता है? गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स रूल ऑफ लॉ. Rule of law will require the rights. Rights have to be exercised in the society. So there has to be reasonability. And this is what is there in the Indian Constitution itself. ठीक है? Now the next thing is you should be knowing कि आप मतलब क्वेश्चन राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस पे है. तो इसके बारे में क्या लिखोगे? तुरंत वो वॉमिट कर दोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, या कुछ ऐसे लिख पाओगे कि यू नो, यू अंडरस्टैंड? लॉकडाउन को ही तो, अरे लॉकडाउन में मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, क्या इसके अलावा और कुछ सोचना चाहिए था? पहली बात, ये चीज ही इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, नहीं होना चाहिए था. बट ये पहले आपको ये समझ तो दिखाओ कि राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है. why you narrow down your vision of a इंडिया की बात बाद में करो. भाई तुम्हें ऐसे लगता है कि राइट ऑफ मूवमेंट, भाई ये मूवमेंट पे जब डिस्कशन है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, आपको कुछ बताना तो पड़ेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसके ऊपर जब रेस्ट्रिक्शंस लगाए भी जाए तो प्रोपोर्शनेट हो, गोल से लिंक्ड हो. यू हैव टू टेक द राइट सीरियसली. यू हैव टू टॉक इन द लैंग्वेज, मतलब थोड़ा लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बढ़ाओ. आ गया समझ में? तो यानी कि अब हमको सोचना क्या है, हमको इसका इंपॉर्टेंस तो एक्सप्लेन कर पाए, तब तो हम इसकी डिबेट में एंटर करेंगे. क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस है क्यों, क्या है तो पढ़ लिया. हाँ, तो कुछ भी मतलब कुछ तो कहने, यू हैव टू बी समवन हु हैज समथिंग टू से. तो राइट ऑफ मूवमेंट एंड राइट ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? किसी भी राइट का क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए तुमको एक टिकट दे दें और बस लेके कह दें भाई घुमाओ, ठीक है, कोई ऐसी बात करो जो बड़ी हो. वन नेशन के लिए मूवमेंट कराएंगे. अरे नेशन के, अरे जब, हाँ, कोई भी चीज है डिग्निटी से लिंक करो. हाँ, टू अपॉर्चुनिटीज छोड़ो ना, हर चीज का इतना इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू क्यों? वाई? पार्डन? डोंट पार्डन. हमेशा
एक रीजन नहीं है, जेनेरिक रीजंस हैं, लेकिन आपको ये तो दिखाना पड़ेगा, और वो बिल्कुल नैरो और एकदम टाइपिफाइड व्यू नहीं होना चाहिए कि कहीं बस पढ़ लिया कि इसलिए हमको चाहिए। आपकी खुद की तो समझ लिखो, तुम्हारे लिए लगता है कि तुम्हें ये फ्रीडम होनी चाहिए, भाई कहीं घूम आए, ठीक है, हमको जहां रहना है वहां रह लें। इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ चॉइस? ऑटोनॉमी है, चॉइस है, and always whenever you are discussing about fundamental rights, you can always bring the idea of human rights, ठीक है। तो फ्रीडम और आर्टिकल 19 है, 20, बहुत सारे राइट्स हैं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से लिए गए हैं। तो अगर हमें इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है तो आई कैन सिंपली स्टार्ट दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। यूडीएचआर में सब है, सब नहीं है तो कोई ना कोई कोर्ट इंटरप्रेट करके बता देगा ये है, ठीक है, बट तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो वेरी फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हाँ, बस यही है कि अब उस कितने कम से कम वर्ड्स में आप, पहली चीज तो आप कई लेवल पे आप प्रिपरेशन करें, पहले तो यही सोचें हाउ टू थिंक एंड व्हाट टू थिंक। Don't just restrict your vision with the words which are there, ठीक है, because everything cannot be written, there's lot that you can understand by what is not written। और थोड़ा स्मार्टनेस हो कि हम उसको ह्यूमन राइट्स की बात कर दें, ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन डिग्निटी की बात कर दें। एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा था, भूल गए तुम लोग, बोल रहे पादन। But मतलब कहीं से भी समझा सकते हैं। अभी देखो तुम्हारी ओरिजिनल थिंकिंग आने लग गई कि इन फैक्ट द मूवमेंट इज सो मच लिंक्ड टू द सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट्स ग्रोथ। तो ऐसे व्हाई दिस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन अ जेनेरिक सेंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एंड most probably you may be knowing that in Menaka Gandhi case, Supreme Court has held that Article 21 and Article 19 is a integrated scheme. So right to movement is also a part of right to live with dignity. And while describing the personal liberty, Supreme Court held that even in very question in the Menaka Gandhi case was that a person should have freedom to travel abroad or here there whatever। तो उसके हालांकि इसके लिए एक स्पेसिफिक केस है, बट आप लॉ के स्टूडेंट थोड़ी हो जो तुमको बिल्कुल स्पेसिफिक केस पता हो। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब प्लस आप थोड़ी सी फ्रॉम फिलोसफिकल, देन यू स्टार्ट टॉकिंग समथिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। तो if we just not talk about these things in these terms, still these are all linked to livelihood। A person may have to move from one place to the other in search of employment opportunities, person may have to move for search of, you can say, medical facilities, there are so many things that may be there। तो इस चीज को आप कितना डेप्थ और कितना बड़ा पिक्चर दे सकते हो, है राइट। और फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक असली रीजन भी क्या हम कह सकते हैं, भाई जब मूव करोगे और रुकने ही नहीं दिया जाएगा तो इंटरलिंक्ड है ना। तो लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देयर कैन बी वन मोर एंगल अटैच्ड, that is about national integration, fine, evolution of this thing। तो वो पूरे holistically इसको discuss कर सकते हैं। तो residence and movement both are linked because
you are moving for your livelihood, so you should be allowed. Right of residence is there to challenge these very regionalist son of soil ideas, and will help in evolution of India as a nation. तो जिस चीज पर क्वेश्चन है उसके पीछे के जो बड़ा आइडिया है उसके पहले बात करो, ठीक है? एंड देन you can say that these rights are not absolute, and for that matter no right is absolute, ठीक है? Because absolute right will become anarchy, ठीक है? You live in a, man is a social animal, you live in a society, or if you don't want to use social animal, उसकी analysis दो ना, man is a moral animal, so you have to take into consideration. Then these rights are, for example, these two rights under Indian Constitution are restricted in the interest of public order, in the interest of protecting the rights of the scheduled tribes, etc. Fine. And then अब ऐसा क्वेश्चन है नहीं है तो you can talk about the recent. There have always been debates. For example, in the past, Supreme Court has restricted the movements of prostitutes in terms of public health and order. However, this particular right has drawn a lot of attention when, in context of COVID, government has introduced the lockdowns, containments, and especially when, and out of, अब इस issue में the most important issue has been the right of migrant workers, because they live on, or their life is dependent on, like they do not have anything in surplus. Fine. So when these rights were restricted in India, it was not just a law and order issue, it was a livelihood issue, and a rationalization was required. Whenever the theory is, whenever a right is restricted, there has to be a rationalization, and judiciary goes with certain principles that the restriction has to be reasonable, it cannot be disproportionate, and always in any civilized countries judicial system there is a proper mechanism for grievance redressal to check the arbitrariness, to minimize the burdens, to check any possible transgressions, and where a state may taking up an excuse to curtail the freedom. And in this context, the role of judiciary becomes very important, especially in such times, as a guardian of the constitution. उसका एक पूरा थीम और पूरा फ्लो, तुम्हें ऐसे लग रहा है सब चीजों को पढ़ने की भी जरूरत है? जनरल तो है लेकिन सोचने की जरूरत है, और आंसर लिखने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस, और आंसर लिखने के लिए या कुछ भी करने के लिए एक पैटर्न्ड थिंकिंग को छोड़ना चाहिए, ठीक है? जो एक पैटर्न्ड थिंकिंग चल रही कि एग्जामिनर को भी पता है ये लिखा होगा, उससे बाहर उठो, ठीक है? और एकदम बस कोई टेस्टिंग ऑफ योर मेमोरी टेस्ट नहीं है वो, इट्स नॉट अ मेमोरी टेस्ट, ठीक है? इट्स एन अंडरस्टैंडिंग एंड अक्रॉस द डोमेन्स। इन चीजों में आपने कहीं एथिक्स में पढ़ा होगा, कहीं कुछ पढ़ा होगा। कौन है जो कह रहा है, उसकी अथॉरिटी क्या है? एक ऐसा इंसान जिसका यूपीएससी नहीं हुआ, या उसने उस फील्ड में कभी एकेडमिकली कोई डिग्री नहीं ली, उस पर तुम कितना ट्रस्ट कर सकते हो?
तो अपने दिमाग पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे हो भाई? यूपीएससी हैज टू सर्च द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट, यही तो कहानी चल रही, बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट, क्योंकि यू आर नॉट वर्स्ट बट यू आर नॉट चेंजिंग योर थिंकिंग। तुमको एक पैटर्न है, तुम डर गए, तुमने किसी को लीडर मान लिया, यही टॉपर ऐसे ही आया था टॉपर। अब टॉपर के मार्क्स भी तो 50% से ऊपर नहीं, और क्यों इस तरीके के इतना फैक्चुअल करके अपने दिमाग को दर्द करना है? प्रोसेस सोच के 1000 क्वेश्चन तुम लिख सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ही ना, खाना देना, कंपनसेशन, यू कैन प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट। हालांकि सरकार ने कुछ किया नहीं, लेकिन लिख तो नहीं सकते हो, तो लिखो भाई मनरेगा टनरेगा जो भी है, दीज सोशल पॉलिसीज, बातें बनानी है। in these are the times when it's a testing, matlab you should know how to speak. These are the testing times for the welfare state, theek hai? How, and definitely the way we have managed is much better than anyone else. Thanks, last mein likh do, thanks to Modi ji, वाह भाई, जय हिंद। मतलब तुम्हें उस चीज पर बात करनी है, वो बात करनी है जो लोगों को सुनना पसंद है। या क्वेश्चन तो रेस्ट्रिक्शन ये है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ सिचुएशंस वेयर restrictions will be there, but judiciary has to ensure and government has to ensure that they are not unreasonable, they are not disproportionate, and in case anybody suffers because of restriction, can we have something for the compensation? तो इस इशू के ऊपर आप किस एंगल से सोच रहे हैं, तो बहुत पिन पॉइंटेड भी रहता है, ऐसे थोड़ी वेग है वो। हाँ, कुछ भी ऐड करो मतलब, लेकिन बस डर के नहीं लिखना है कि ये आर्टिकल, ये केस, ये, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने अपना काम कर दिया। इसीलिए अगर सोशल साइंसेस की खास बात क्या है, लैंग्वेज एंड आइडियाज, एंड इवन इफ यू हैव लिटिल information about what is happening, still you can put up a case, ठीक है? Now, to what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India has changed the governance landscape at the grassroots level? For this question, what would have been your approach to think? Has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? डायरेक्ट डेमोक्रेसी पहले एक पैराग्राफ में लिख दोगे? हाँ, क्या पहला सेंटेंस बता दो। गांधीयन फिलॉसफी है तो आप मान क्यों रहे हैं, मतलब लॉजिक क्या है? टू व्हाट, इसमें पकड़ो ना, चीज पकड़ो। To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape? किस चीज की जानकारी यहाँ पे जरूरी? गवर्नेंस। एक तो गवर्नेंस लैंडस्केप, तो व्हाट इज अ लैंड गवर्नेंस लैंडस्केप है क्या अपना? लैंडस्केप क्या होता है? कभी पेंटिंग बनाई? क्या बनाते हो लैंडस्केप में? अप्रोच लिखते हो? बड़ा सा बना देते हैं, ऐसा है। लैंडस्केप इज ड्रॉ द पिक्चर, ठीक है? ड्रॉ द पिक्चर।
you will have to draw the picture of the state of governance at the grassroots level. ठीक है, पहला क्या लिखना चाहिए था? You have to present a picture of governance at the grassroots level. ठीक है, what is the picture of governance? You have good governance? grassroots level पे सब अच्छा है? नहीं है, गड़बड़ है. क्या है ग्रास रूट? मतलब विलेज, विलेज लेवल पर. व्हाट इज द स्टेट ऑफ गवर्नेंस? गुड, बैड, अगली? हाँ, बीच में तो नहीं है, इट्स ऑल अगली. ऐसा क्या आप बात कर सकते हैं जिसमें आप दिखा दें कि भाई मुझे पता है गवर्नेंस? और है जो बोलना है सेंटेंस में बोलो, वर्ड्स में नहीं. इससे स्टार्ट करोगे? किससे? गवर्नेंस तुम लोग गांव में कभी गए हो? क्या है, सड़क उड़क मिली, डॉक्टर मिला? That doesn't make any sense. There is a lack of very basic services. How do you define that? हाँ, इसको ड्रामेटाइज करके अगर बताना है, क्या बताओगे? है बेसिक राइट्स नहीं है. डिग्निटी तो है, ठीक है. जब भी यस, गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री with a huge population, traditional society, or lack of education, at least in terms of citizenship. तो हाँ, तो कुल मिला के situation is bad at the grassroots level. ठीक है, तो we can also say that in recent years we always talk about the increasing gap between India and Bharat. ठीक है, तो this itself shows a big difference in the quality of life at the grassroots level. ठीक है, एंड फिर उसको थोड़ा इमोशनल करना है. ठीक है, इट इज अ सैड ट्रुथ इन अ कंट्री वेयर गांधी हेल्ड दैट इंडिया लिव्स इन विलेजेस. ठीक है, एंड अगेन इट इज ऑल द मोर सैड आफ्टर हाउ मेनी years of independence? Fine. So despite changes, we have not been able to change the rural landscape. Now, what is the rural landscape? The poverty, fine, inequalities, poor quality of services, exploitation, ये सब चीजें थोड़ा सा लैंडस्केप बना दो. ठीक है, why to change the landscape? क्यों चेंज करना है लैंडस्केप की चिंता? क्यों? तो पहला तो हमको गवर्नेंस लैंडस्केप को हम कितना ड्रामेटिकली बता सकते हैं, बता दो. ठीक है, एंड देन यू कैन ऑलवेज टॉक. नेक्स्ट चीज डिस्कस करो, व्हाई सच अ लैंडस्केप. देखो, व्हाई सच अ लैंडस्केप. ठीक है, तो बिकॉज दे आर नॉट लकी पीपल. यू लैंडस्केप क्यों है ऐसा? भगवान चाहता है, पनिश करना चाह रहा है? किंग जेम्स फर्स्ट नहीं है? सिस्टम.
हाँ, इग्नोरेंस नहीं, यू कैन, मतलब गवर्नेंस फेलियर है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है. यू कैन ऑल्सो राइट दैट द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू, the seriousness of the issue is, in some regions India is also infested with the left wing insurgency, okay, which the former Prime Minister Manmohan Singh held that one of the biggest internal security challenge. So this is not just a developmental issue, इट्स अ सिक्योरिटी इशू, ठीक है. उसको आप कितना सीरियसनेस से इसको देख रहे हो और उसको कितना ड्रामेटाइज बना सकते हो, बनाओ. ऐड कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या आपने थीम बनाया है चीजों को सोचने का, ठीक है. तो हमने तो उसको सिक्योरिटी इशू, मतलब हम तो पाकिस्तान के खतरे से बड़ा बना देते हैं खतरा, ठीक है. प्लस जब जो भी चीजें हैं, तो अल्टीमेटली द बर्डन विल गो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सिचुएशन एज गवर्नेंस फेलियर, ठीक है. तो ये क्या है, गवर्नेंस फेलियर है. इसको अब डिस्कस करो, गवर्नेंस फेलियर को, ठीक है. गवर्नेंस फेलियर आप कह सकते हैं. तो जब आप गवर्नेंस फेलियर कह रहे हैं, इसमें किसका फेलियर कह रहे हैं? गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट की नहीं कर रहे हैं. ब्यूरोक्रेसी तो है ही है, ठीक है. तो अब अगर कहीं कोई वर्ड दिया हुआ है, तो आप पहले एक्सप्लेन करो कि आपको पता है. तो if we talk about governance failure, governance include at the center the government, but also a failure of civil society. अगर हम सीधे गवर्नमेंट लिख देंगे तो पता लगा घर ही आ जाए. अपना भी हम लोग को थोड़ा सा न्यूट्रल लेके चलना है, ठीक है. तो गवर्नेंस फेलियर है, फेलियर ऑफ ऑल. It's a collective failure, and even the greater responsibility lies with the educated section of the civil society, ठीक है. Because until and unless civil society does not create the pressure, governments do not perform, ठीक है. ऐसा है. तो ये लिखो, आइडियाज लिखो ना. इसके लिए क्या कोई कंसेप्ट पता है आपको? और ये सब चीजें लोग सोचते हैं जीएस में नहीं लिखे जाते, लेकिन सब चीजें जीएस में आती हैं, प्रीलिम्स में सब आती हैं. एक वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोशल कैपिटल, ठीक है. तो विदाउट सोशल कैपिटल यू कांट अचीव दिस थिंग. Why am I talking about social capital in this question? Social capital की बात ही हम क्यों कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? It's my intelligence to bring social capital issue here. अरे क्वेश्चन है ना डिसेंट्रलाइजेशन. जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होगा, इसका मतलब है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की फिलॉसफी क्या है? सोशल कैपिटल ही तो है. ये सब पढ़ लेते हो लेकिन यूज ही नहीं करते कभी. हमको तो ऐसे ही लगता है कि अगर हल्का सा कोई अखबार पढ़ ले एक बार और जस्ट पता भी हो, तो भी आप अपने आइडिया से सारे आंसर लिख लोगे. और जो जैसे वर्ड्स बता रहे हैं, इनकी आपके पास एक वोकैबुलरी होनी चाहिए. इंडिया, भारत, एकदम गांव का आया, सोचो क्या क्या पता है गांव के बारे में. इंडिया, भारत, इसको यूज करेंगे, ठीक है. सोशल कैपिटल, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल रेवोल्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये सब इंश्योर करो. ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी,
नहीं पूछा गया तुम लिख दो। भाई ये सब चीजें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एडर नहीं कर रहे हो तभी तो इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते थे कंक्लूजन में कि नहीं लिख सकते थे? ठीक है, तो ऐसे ही सोचते कि क्या क्या, मैं तो यही सोचती हूँ इसमें क्या क्या चीजें डाल सकता है। ये भी लिख सकते हैं। तो अब पहले हमने गवर्नेंस फेलियर, सोशल कैपिटल, अब सोशल कैपिटल के ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, या ये जो बिकॉज ऑफ दिस गवर्नेंस फेलियर इंडिया हैज अर्नड द टाइटल ऑफ अ सॉफ्ट स्टेट। ठीक है, soft state word, and the person that has used the concept of soft state like Gunnar Myrdal you can always use, he's not from political science, he's from economics. Gunnar Myrdal का concept है ना soft state, तो use करो उसे। ठीक है, तो और soft state के पीछे सबसे बड़ा reason क्या है? The biggest reason is continuation, the biggest reason is corruption. So so much of money program, there is no dearth of allocation of resources. तो प्रॉब्लम क्या है हमेशा? करप्शन। फॉर करप्शन फ्री गवर्नेंस you require what? Transparency, accountability. Who will establish the accountability? The people. That is the idea why every government or every expert reports always project as if decentralization is the most sacred principle of good governance. ठीक है, we talk about Agenda 21, you can talk about the Sustainable Development Goals, wherever, nowhere you miss out this thing. तो उस चीज को बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब ये तो हमने इसकी फिलॉसफी एक्सप्लेन कर दी। अब ये है टू व्हाट एक्सटेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप। ओके, तो आफ्टर अ फिलोसॉफिकल एंड कंसेप्चुअल अप्रोच टेक अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या होगा? दैट till 90s our governance model was bureaucracy led model. ठीक है, for example Pandit Nehru held that bureaucracy will act as a vanguard of India's social revolution. ठीक है, but by 90s it was realized that such model is resulting into the India as a soft state, corruption, and not achieving its aim, and hence the governance model has changed. The governance model that has changed in 90s is the rolling back of the state, recognizing the importance of community participation. Every document of World Bank etc. they are talking about good governance in that sense of the term. तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात कर सकते हैं। फिर hence government of India has taken a revolutionary step towards the decentralization in the form of 73rd and 74th Amendment Act, further extended to the this 5th schedule area in the form of PESA Act. फिर थोड़ा सा उसके बारे में कि what does it create? It creates an institutional structure. It tries to address some of the institutional defects in terms of the regularity of elections, fundings, and all these things. But still, even after I think more than how many years? More than 25 years. ठीक है,
we see that not much has changed at the ground level. ठीक है? Why? So there are many reasons things have not changed, but this puts up a question that whether the decentralization that has happened was done in a right manner, or was it a half-hearted decentralization? So what the reports say, whether we talk about 14th Finance Commission or 15th Finance Commission, government reports की आप बात करो, ठीक है? Whether we talk about Mani Shankar Iyer Committee's recommendations or Niti Ayog's reports, they all show, even second ARC, they all show that there has not been an adequate amount of decentralization that can give real strength. ठीक है? But don't be so pessimistic. It's not that nothing has happened. However, there is a lot of variation. ठीक है? So we see that certain states have done really well. That is reflected in their achievements of human development. For example, Kerala. You can talk about Karnataka. You can talk about Maharashtra. You can talk about Tamil Nadu. Gujarat नहीं. गुजरात का ही तो सबसे खराब है ह्यूमन डेवलपमेंट. गुजरात में नहीं है ये सब. मतलब जो 3-4 मॉडल्स हैं, अब आप उसको ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हो, नॉलेज बेस्ड बात कर रहे हो, बेस्ड ऑन द डिवोल्यूशन इंडेक्स, ऑर्डरिंग, पायस सिस्टम, या ये सारी चीजें हैं. ठीक है? तो फिर इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हो दैट the people at the grassroots level, they are most vulnerable. So strengthening is required for efficient public service delivery. You have to give power. मतलब तुमको हमेशा फिलॉसफी की बात करनी है, आइडियाज समझने हैं चीजों के. ठीक है? ये मतलब सिविल सर्विस यूपीएससी एग्जाम और स्टेट एग्जाम में एक डिफरेंस ऑफ लेवल होना चाहिए. इनके एक्सपेक्टेशन में कम से कम होगा. ठीक है? कि आप आइडियाज के पीछे जाएं, उस चीज को समझें. तो अब इसके बाद क्या है? हमको गवर्नेंस लैंडस्केप, यू हैव टू टेल द इंपॉर्टेंस दैट गवर्नेंस लैंडस्केप हैज टू बी चेंज्ड. व्हाई? Why do you want governance landscape has to be changed? Is it just a utopian vision, or is it a necessity if we want the ideals of Atmanirbhar Bharat? ठीक है? If you want that to attract the investment, ठीक है, there is a need for building the skill of the people, empowering them, ठीक है, create the infrastructure, facilities, even to address the very unplanned urbanization, congestion of our cities. उसमें कहाँ पे तुमको move करना है? From a philosophy to a practical. एकदम philosophy की बात नहीं करो, जैसी उसको लगे ये इंसान बड़ा आइडियलिस्टिक है, वैसी उसको जमीन पे लाओ. ठीक है? कि भाई आत्मनिर्भर के लिए तो कर लो. ठीक है? आत्मनिर्भर भारत है, इंडिया की इकोनॉमी है, स्टिल एग्रीकल्चर रिमेन्स द बैकबोन. ठीक है? तो ये सारा प्रैक्टिकल चीजें आप लिखो उसके ऊपर. ठीक है? और फिर वे फॉरवर्ड. तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर effective decentralization? You need not any decentralization. You require effective, efficient, ठीक है, decentralization. What will be the component? कोई भी चीज just लिखना नहीं है. You understand it, उसको उसमें add करो. तो what should be the component of this effective decentralization? Obviously, institutional reforms is just a part of it. ठीक है? You have to strengthen, you have to make
people, you have to go for capacity building of the people. फिर क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं? टॉक अबाउट सोशल ऑडिटिंग, ठीक है, टॉक अबाउट creation of awareness, and then also see some initiatives by the government to strengthen the system. For example, Gram Swaraj, Gram Uday, e-panchayats, inclusion, this use of IT, Swamitva scheme. So, you can write about certain governance related things. And you can also write that some of the, you can say that major जो हमारे programs हैं उसमें, for example मनरेगा, we already recognize the role, ICDS we already recognize the role, ठीक है, तो but decentralization in itself may not be enough, ठीक है, तो you have to understand which type of decentralization, what will suit to India, क्या decentralization करना है, there is a need to, and it has to be ultimately, फिर आंसर कहाँ पे खत्म करना है, at the emotional touch, ठीक है, तो emotional touch क्या होगा कि भाई if we won't be able to provide the very basic and change the grassroots landscape, don't you think that we will be betraying the trust of all those who participated in the freedom movement? With this approach or with this vision that there is going to be a qualitative change in the quality of life than what was there. So it's a matter of trust. It's a matter of the sanctity of the contract. Contract की भी तो sanctity है, ये सब लिखा है we the people. तो ऐसे लास्ट में इमोशनल करना जाना है, ठीक है, और ये सब चीजें इमोशनल करती हैं उन लोगों का क्या जिन्होंने बलिदान दिया शहीदों की चिताओं पर, क्या बस दिया जलाते रहोगे, काम भी तो करोगे कुछ, आगे समझ में, ठीक है, तो और कुछ करना है या अभी? इसका तो कुछ खास है नहीं. डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो ये तो तुम लोग को लगेगा आसानी से कर लेंगे, लेकिन क्या खास करोगे कि तुम क्या कहाँ से, आप कहाँ से, फिलॉसफी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो बड़ा एंगल कौन सा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा? भाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात आप कर रहे हैं तो राज्यसभा की तो इंपॉर्टेंस समझिए, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे? पहले दो चार फालतू बातें करनी, राज्यसभा, मोदी जी से सीखो कितना, मतलब पहले फालतू बातें ही कर करके पीएम मतलब बन जाते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग, तो यही तो सीखना है कि तुमने कहां तक देखा, तुम कई लोग सीधे वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल दिस, इलेक्शन दिस, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या लिखना पड़ेगा, राज्यसभा, पहले तो सोचो क्या लिखना है, फिर सोचो क्या उस चीज के किसके बारे में लिखना है, उसके बारे में क्या लिखें, क्या लिखोगे राज्यसभा के बारे में, है वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबको पता है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले, बढ़ने से पहले क्या इंपॉर्टेंस था भाई, पता नहीं कितनी सोची तुम लोग की, लिमिटेड सोच क्यों रहती है, राज्यसभा है क्या,
अरे नहीं, हम क्यों बोले तुम भाई, हम कह रहे हैं एक शब्द है राज्यसभा, ठीक है, इसके बारे में आप सोचिए। क्वेश्चन छोड़ दो, फेडरल के लिए जरूरी है। तुम्हें खुद लग रहा है क्या इससे कुछ अच्छा हो सकता था तुम्हारा? हैं? और कुछ सोचो ना, बड़ा सोचो, बड़ा पता है तुम लोग की समस्या है कि तुम जो पढ़ते हो उसके अलावा नहीं सोचते कभी। बेटर स्क्रूटिन, अरे ये है तो भाई ऐसे, अरे शब्द पहले क्या है, क्वेश्चन भूल जाओ क्या पूछा है, सोचो राज्यसभा शब्द दिया गया है मुझे, व्हाट विल आई राइट अबाउट राज्यसभा, जो कुछ धमाकेदार हो, बढ़िया। क्वेश्चन इतना सिंपल है तो उसमें आपको कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। यस, हाँ, कुछ तो तुम पहुंचे। तो राज्यसभा पहले सोचो है क्या, पार्लियामेंट है का पार्ट है, ठीक है, सभा समिति नहीं। अब सोचने के लिए क्या है, तो कुछ भी सोचना थोड़ी है, ठीक है भाई। राज्यसभा को आप एक कॉन्टेक्स्ट में रखिए ना पहले, क्या कॉन्टेक्स्ट है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अ बेसिक स्ट्रक्चर? तो ऐसी बड़ी बातें क्यों नहीं पीछे से चल रहे हो? ये तो दिखाओ ना कितने तुमको दिख रहा है, उसके पीछे क्या क्या ये सब दिख रहा है, राज्यसभा दिखते समय क्या क्या दिख जा रहा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। And when parliamentary form of government was adopted, there was a lot of times you can always bring the Constituent Assembly debate. There was a debate and still whether presidential or the parliamentary system. ठीक है, तो parliamentary system has been chosen because it is seen as more democratic, more representative, है? हाँ, मतलब हमारा कहने का मतलब है राज्यसभा अपना जो दिमाग जो पढ़ रखा है उस उतना लिमिट नहीं रखना है। तुमने जो पढ़ा है उसके अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ पता है, तो वो चीज क्यों हावी हो रही है कि जो हमने पढ़ा है, वो तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज जस्ट टू सपोर्ट अस थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो राज्यसभा के पहले ये सोचो ना, राज्यसभा के बारे में हम क्या सोचें, क्या ऐसी क्या चीज है इसको इतना हम क्यों, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है इंसान। तो भाई राज्यसभा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी is a part of the very idea of deliberative democracy, ठीक है। And normally, and what is Rajya Sabha? Rajya Sabha is a upper house. You have to give the theory of it. Now the upper house is seen through two angles. First, as an assembly of elders to give the revising ओपिनियन, ठीक है। कंपेयर, पहले थियरी थोड़ा समझाओ, ठीक है। एंड सेकेंड एज अ फेडरल चैम्बर, दिस इज द डुअल रोल। एंड नॉट जस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरलिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर। सो नंबर ऑफ टाइम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा गोज बियॉन्ड what we are used to think, ठीक है। and obviously vice president as a chairman of Rajya Sabha is
normally understood as a superfluous post. Often you say that the post of vice president is understood as his superfluous highness, but that is not the case. ठीक है? And this is not a superfluous position, is very well recognized. If you see the manner in the way vice president is elected, his qualifications, he has a what? The casting vote, and the dual role he has, but primarily as a chairperson and acting. तो उस चीज की थोड़ी एनालिसिस करो कि हमें ये समझ में आता है. ठीक है? And then he is the symbol of the house. The way speaker, similarly here, he has to maintain the order, the dignity. उसके रोल को थोड़ा एक्सप्लेन करो. फिर क्या इन क्वेश्चंस में try to take a comparative view. The institution is more modeled on the American system, but it differs. Fine, it is drawn from there, but it differs here. Fine. And then you bring that they have a role, and now the role increases all the more. Whenever one party dominant system comes, it becomes so much essential that Rajya Sabha takes a lead and acts as an institution of checks and balances. ठीक है? तो role of a vice president as a chairman, तो obviously the functioning of Rajya Sabha, how efficiently, how effectively it can work, how effectively its committees can work, to large extent lies with the chairman. And again, as a chairman, or you can say he has also a role in the impeachment process, ये सब भी चीजें लिख सकते हैं. And we can say that fortunately the persons of great dignity, etc., eminent persons have held this position, be it S. Radhakrishnan or Hamid Ansari, और इनका तो नाम लेने लायक नहीं. कौन है अभी चेयर? तो नाम ही नहीं मालूम है. कुछ है इनका को तो? हाँ, ठीक है. मतलब जैसे कुछ अच्छा एस राधा कृष्णन को डाल करके वो देख सकते हो. ठीक है? तो इस इशू क्या है? इशू ये है आपको कहानी बनानी है. ठीक है? और वो पूरी चीजें सिंपल थिंग्स शुड ऑल्सो, you should have an art to make it appear interesting. There has to be a flow of ideas. There has to be a thought process. ठीक. हाँ, तो वही तो कह रहे हैं. छोटे बच्चे लिखेंगे act like this, ये this that, इससे ऊपर उठ जाओ. तुम अब छोटे बच्चे नहीं रह गए 11th-12th के कि जो 5 पॉइंट रात याद किए और लिख लिए. तुम्हें points are just to support and you have to write the analysis. ठीक है? तो आज के लिए तो हमको लगता है अभी खत्म करते हैं. ठीक है? कुछ दिमाग खुला कुछ है? चलो, नहीं खुला तो रोज एक मेंटोस खाया करो. हाँ, मेंटोस मिलती है, मेंटोस खाओ. बाकी बाद में करते हैं क्योंकि आई हैव टू गो. थैंक यू ऑल ऑफ यू.